हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? हमने अपने पिछले लेक्चर में बेटा क्या टॉपिक सीखा है? कारनॉट हीट इंजन और उसकी एफिशिएंसी। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। लेकिन आज के लेक्चर में हम यूज करेंगे क्लॉसियस की स्टेटमेंट, उसके ऊपर बेस्ड है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप बोलते हैं इसको। रेफ्रिजरेटर जो कि हर डोमेस्टिकली यूज होने वाली, हर घर में यूज होने वाली एक बेसिक चीज है, नेसेसिटी है आप कह लो, रेफ्रिजरेटर। तो आज का लेक्चर आपके घर के रेफ्रिजरेटर के ऊपर बेस्ड है। आज हम आपके रेफ्रिजरेटर जो आपने बचपन से देखते आ रहे हो घर में, उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं। ठीक है जी। कौन कौन सी क्वालिटी का है अपना रेफ्रिजरेटर घर में आप चेक करिएगा। सिंगल डोर है कि डबल डोर है कि 4 डोर्स है, चेक करना आपने। हीट पंप कहते हैं इसको, हीट पंप। एक ऐसा पंप जो चीजों से हीट एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंके, हीट पंप। यू गॉट दैट? हाँ जी। तो रेफ्रिजरेटर जब चलना है घर में तो पहले क्लॉसियस की स्टेटमेंट की क्लियरिटी होनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट है? कि हम किसी लोअर टेम्परेचर वाले रीजन से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर तभी कर पाएंगे जब तक हम एक्सटर्नल मशीन, कोई मोटर, कोई डिवाइस लगाएंगे। बिना मशीन लगाए, बिना मोटर लगाए हम हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। पहले बेसिक चीज देखो। Basic principle of refrigeration is simple. Just pass a colder liquid continuously around the object which is to be cooled. This will take heat out from the object. The whole refrigeration technology is after this: how to produce cold liquid continuously. We will see how this is achieved in this video. This is what inside a refrigerator. At the heart of the system is a simple device called throttling device. Cold liquid is produced with help of this phenomenon. In this case, throttling device is a capillary tube. For effective throttling, an inlet refrigerant should be high pressure liquid. Throttling device is an obstruction to the flow, which causes tremendous pressure drop. Due to drop in pressure, boiling point of refrigerant comes down and it starts evaporating. Heat required for evaporation comes within the refrigerant, so its temperature drops. If you check temperature across throttling device, you can notice this drop. Next phase is simple. Just pass this cold liquid over the body where you have to absorb heat. During heat absorption process, refrigerant further evaporates and transforms into pure vapor. So we have produced the required refrigeration effect. If we can take this low pressure vapor refrigerant to state before throttling process, that is high pressure liquid state, we will be able to repeat this process. So first step, let's raise the pressure. A compressor is introduced for this purpose. Compressor will raise the pressure back to its initial value. But since it is compressing gas, along with pressure, temperature will also raise. It is unavoidable.
Now the refrigerant is high pressure vapor. To convert it to liquid state, we are introducing another heat exchanger. This heat exchanger is fitted outside refrigerator, so it will liberate heat to the surroundings. Vapor will get condensed to liquid and temperature will come down to normal level. So the refrigerant is back to its initial state again, high pressure liquid. We can repeat this cycle over and over for continuous refrigeration. This cycle is known as vapor compression cycle. You can note more details of refrigerator components here. To enhance heat transfer, both evaporator and condenser are having fins attached to it. Since evaporator is cooling the surrounding air, it is common that water will get condensed over it, forming frost. Frequent removal of frost is required to enhance heat transfer. Apart from raising pressure, compressor also helps maintain flow in the refrigerant circuit. Usually, hermetically sealed reciprocating type with proper sealing is used for this purpose. Since it is compressing gas, huge amount of input power is required for this operation. A simple energy balance of the system yields this relation. सो बच्चा पार्टी एक्चुअली तो ये जो होता है फ्रिज में कैसे प्रेशर डिफरेंस के कारण ठंडी हवा चलती है, सर्कुलेट होती है, कंप्रेसर चलाता है, ये सारी मैथमेटिकल कहानियां हमें नहीं नीड। हमने कुछ बेसिक चीज़ें पकड़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर, जिस पे बेस्ड क्लॉशियस स्टेटमेंट पे बेस्ड। अगर आप क्लॉशियस की स्टेटमेंट को रीकैप करें तो क्या थी? इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर टू द बॉडी एट हाई टेम्परेचर अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट। तो मैं आपको आज रेफ्रिजरेटर की डिटेल देने वाला हूं। लिखिए, इट इज ए रिवर्स कार्नोट हीट इंजन। क्यों भाई, क्यों ये ऐसे? कार्नोट हीट इंजन क्या था? कार्नोट हीट इंजन क्या था? जो सोर्स से हीट लेता था, कुछ काम किया और सिंक को हीट रिजेक्ट की, यही था कार्नोट हीट इंजन। अब मैंने कहा ये रिवर्स कार्नोट हीट इंजन है। क्वेश्चन रेज होता है, कृति पूछ रही है सर ऐसा क्यों होता है, कैसे, व्हाई इट इज सो, व्हाई इट इज सो। It absorbs heat from a body at low temperature from a body at low temperature, जिसको हम बोलते हैं सिंक, and rejects heat to system or source at high temperature।
at a high temperature, but with the help of a motor जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर की हेल्प से, बहुत ध्यान से पढ़िए वर्ड, बहुत ध्यान से, ठीक है जी। इन द रेफ्रिजरेटर the foodstuffs bottles, fruits, जो भी आप उसमें रखते हो एक्सेट्रा, act as sink, temperature T2, and the room where it is placed act as source, temperature T1, act as a source जिसका टेम्परेचर कितना T1। The working substance is a gas filled in compressor ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस इज ए गैस विच इज फिल्ड इन ए कंप्रेसर एंड इट्स वर्किंग इज based on Clausius statement। Clausius statement। After cooling, the complete content the refrigerator comes to its initial state। That is, it works in a cyclic manner। It works in a क्या cyclic manner। बहुत बढ़िया बात है, साइक्लिकली चलता है। बड़े सारे मिथ्स, बड़े सारी बातें। आप कभी अभी आज अपने फ्रिज को ऑब्जर्व करना, आप उसका डोर खोलो, उसमें वाटर बॉटल रखो, आप देखोगे थोड़ा सा बिल्कुल काम, शोर ना हो उस जगह पे, उसका कंप्रेसर चलेगा, ठंडी करेगा उस बॉटल को, कुछ देर बाद कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फ्रिज में से जो हमिंग नॉइस है
वो बंद हो जाएगी। मतलब रेफ्रिजरेटर अपनी इनिशियल स्टेज पे आ गया, अब उसका कंप्रेसर चल नहीं रहा। अब जैसे आजकल विंटर डेज हैं, विंटर चिली डे है, आज तो बहुत ही बढ़िया सर्दी है, ठीक है, बाहर कितनी फॉग है, तो आपको कोई कहे कि ठंडा पानी पी लो, पियोगे आप? फ्रिज में से आइस निकाल लो, निकालेंगे हम? नहीं, यूज़ नहीं कर रहे। कई लोगों की कन्वेंशन होती है फ्रिज तो यूज़ कर नहीं रहे, फूड स्टफ्स भी आप बाहर ही रहने दो, वो बाहर ही ठंडे हैं, ख़राब नहीं हो रहे, तो फ्रिज को बंद कर दो यार, बिजली बचाओ। कभी नहीं ऐसे करना भाई, कभी नहीं ऐसे करना, फ्रिज को बंद नहीं करना। फ्रिज चलता है, आज की डेट में भी अभी चल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम वैनिशिंगली स्मॉल अमाउंट में कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तब होती है जब उसकी मोटर चल रही है, अगर चीजें सारी अंदर ठंडी हैं तो फिर मोटर ही नहीं चल रही, मोटर कंप्रेसर चल ही नहीं रहा, तो फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रही। इसलिए आप लोगों ने कभी भी फ्रिज को विंटर डेज में भी बंद नहीं करना। पॉइंट टू बी नोटिसेबल। साइक्लिक मैनर में चलता, कुछ जज करें। इसने सिंक से हीट ली, मान लीजिए Q2, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर काम किया, वर्क बाय मोटर, मोटर मतलब कंप्रेसर, और इसने हीट रिजेक्ट की, किसको? सोर्स को, जो कि रूम है। रूम कह लो, किचन कह लो, लॉबी कह लो, जहां पर आपका फ्रिज पड़ा है, सराउंडिंग जहां पर घर में पड़ा। सिंक फूड स्टफ्स है, फूड स्टफ मतलब इंटीरियर ऑफ फ्रिज, इंटीरियर जोन, ये क्या? रूम। एक्सटीरियर जोन, वर्क किसने किया? मोटर ने किया, ठीक है, ओके। Q2 हीट अब्सॉर्ब की, Q1 हीट, ये हीट क्या की उसने? एब्जॉर्ब। ये हीट क्या की उसने? रिजेक्ट। फ्रिज के पीछे हाथ रख के ऑब्जर्व करो तो आपको थोड़ा गर्म फील होगा, चेक करना आज ये सारी बातें, ठीक है। DQ नेट हीट, Q2 ली, Q1 रिजेक्ट, नेट हीट क्या हुई? DQ, Q2 माइनस Q1, DU जीरो, क्योंकि साइक्लिक मैनर में चल रहा है। DW माइनस W क्यों? क्योंकि बाय द मोटर काम कर रहा है। DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस DW, Q2 माइनस Q1 शून्य, तो W इक्वल टू क्या आ गया? Q1 माइनस Q2। याद रखना। कितनी हीट ली? Q2। कितनी हीट दी? Q1।
नेट एब्जॉर्ब्ड हीट Q2 माइनस Q1, du क्या शून्य, शून्य क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक मैनर में चल रहा है, क्योंकि ये साइक्लिक मैनर में चल रहा है। dw माइनस क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय द मोटर है, बाय मोटर ऑन द सिस्टम, नेगेटिव वर्क। dw माइनस w, तो dq ये चीज आ गई, पता चला। अब आती है इसकी बात एक, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बीटा, सीओपी लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव में भी सीओपी लिखा होता है, ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बीटा, इट इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ओवर वर्क डन, हीट एब्जॉर्ब्ड ओवर वर्क डन पर साइकिल। वर्क डन पर साइकिल क्या, दिस थिंग, ठीक है जी। बीटा, सारे पैरामीटर्स को ऐसे कर दो, Q2 बाई Q1 प्रूव किया था, इंजन में T2 बाई T1 होता है, तो क्या बना, T2 ओवर T1 माइनस T2, इंपॉर्टेंट बात। ये कहां से लिया मैंने, ओ कार्नोट हीट इंजन से, रिवर्स कार्नोट हीट इंजन, मैंने इसलिए नाम दिया इसको रिवर्स कार्नोट हीट इंजन, समझे बात को। तो बीटा क्या आया, T2 ओवर T1 माइनस T2, T2 ओवर T1 माइनस T2, बीटा की वैल्यू T2 ओवर T1 माइनस T2, T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक, T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स, बीटा डिपेंड करता है। T2 ओवर T1 माइनस T2, T2 ओवर T1 माइनस T2, एक्सप्रेशन को जज करिए, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल तो काम खत्म हो गया, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फ्रिज में कुछ चीजें रखने से पहले आपने मिल्क बॉयल किया, मिल्क बॉयल किया, आप एकदम से कंटेनर को फ्रिज में नहीं रख देते, कुछ देर उसको पड़े रहने देते हो। आपके मदर ने घर में फूड स्टफ कुक किया, आप सब्जी को एकदम से फ्रिज में नहीं रख देते हो, कुछ देर पड़े रहने देते हो, वाई सो, वाई सो, फील आया रीजन सामने। जितना ये डिफरेंस कम होगा उतना बीटा ज्यादा होगा। हम उनको रूम टेम्परेचर पे आने देते आने देते आने देते आने देते, बहुत हॉट यूटेंसिल रखोगे अंदर, उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करनी, रूम का और यूटेंसिल का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना बीटा कम, इसलिए उसको रूम में कुछ देर के लिए पड़े रहने देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर को विंटर डेज में बंद क्यों नहीं करना चाहिए, पता चल गया।
रीजन बताया था, साइक्लिक मैनर में चलता है। अगर आप बिल्कुल बंद कर दोगे तो उसमें से फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बाद में आप 2 3 4 5 घंटे बंद रख रहे हो, फ्रिज भरा हुआ है, एकदम से जब ऑन करना है, कंप्रेसर ने इतना लोड लेना है, हर चीज से सारे से हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, तो खराब हो सकता है। ठीक है, बंद नहीं करना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं जे कर रहा। देन कम्स फ्रीजर जो है, फ्रिज में एक इंडिपेंडेंट कैबिन है, सारा ही फ्रीजर क्यों नहीं है? फ्रीजर में सारी चीजें 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पे। अगर हम फूड स्टफ्स को उसमें रख देंगे तो वो फूड स्टफ्स खराब हो जाते हैं। एप्पल को रख दो एक दिन फ्रीजर में, अभी आज एक एप्पल को फ्रीजर में रख दो और उसको शाम को बाहर निकालो, आप देखोगे कुछ देर, पहली बात तो आप एकदम से खा नहीं पाओगे, कुछ देर पड़े रहने दोगे, उसका टेस्ट बदल जाएगा, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू, फूड वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। अंदर पहले वो फ्रीज हो गया, फिर अब उसको बाहर रखा है, उसका टेस्ट ही बदल जाएगा। इसलिए फ्रोजन फूड्स या जो हमें आइस वगैरह है 0 से कम टेम्परेचर पे, वो हम फ्रीजर में रखते हैं, और वो एक इंडिपेंडेंट कैबिन होना चाहिए। मिल्क बॉटल, फूड स्टफ्स, फ्रूट्स, उनके लिए अलग अलग कैबिन होने चाहिए। फ्रीजर यूजुअली घरों के फ्रिज में ऊपर टॉप पे होता है, बॉटम में नहीं। ठीक है जी, हमारे घर में है एक बॉटम वाला भी फ्रिज जिसमें फ्रीजर बॉटम पे है, पर यूजुअली कहां पर होता है? टॉप पे। क्यों? क्योंकि जब ऊपर कूल एयर होनी है, वो कूल एयर ऊपर से नीचे अपने आप आ जानी है, कन्वेक्शन फिनोमिना। पर अगर फ्रीजर सेक्शन नीचे ही होगा तो वो कूल एयर ऊपर नहीं जाएगी, आपको एक अलग से मोटर लगानी पड़ेगी जो उसको कूल एयर को फ्लो कराए सारे फ्रिज में। इसलिए फ्रीजर यूजुअली कहां पर होता है? टॉप पे। टॉप से नीचे ठंडी हवा अपने आप आ जानी है, नीचे से ऊपर ठंडी हवा जाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल मोटर, एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए होता है। फिर क्वेश्चन आता है, अगर आप फ्रिज का डोर ओपन कर दोगे तो क्या होगा? इफ यू ओपन द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर व्हाट विल हैपन? अगर मैंने फ्रिज का डोर ओपन कर दिया तो ये जो सराउंडिंग एयर है ये भी एज ए पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगी। ठीक है, अब कंप्रेसर को उस एयर को भी ठंडा करना पड़ेगा और ज्यादा काम करना पड़ेगा, जितनी हीट और एब्जॉर्ब करेगा उसी पोर्शन में हीट रिजेक्ट करेगा, तो वहां पर ही हीट रिजेक्ट भी हो रही है ज्यादा और एब्जॉर्ब भी हो रही है, इसलिए फ्रिज प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। हम कहेंगे ये फ्रिज, बल्कि जो रूम है जहां पर फ्रिज रखा गया वो ज्यादा गर्म हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग कूल। तो क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी बोलती है? कैन वी कूल ए रेफ्रिजरेटर बाय ओपनिंग इट्स डोर? कैन वी कूल द रूम बाय ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर? नो, the room will be heated in spite of being cool. समय लगी बात। फ्रिज में एक चीज बटन होता है डीफ्रॉस्टिंग। जब बहुत ज्यादा बर्फ बन जाती है तो हम डीफ्रॉस्ट बटन प्रेस करते हैं। क्यों? बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होने से T2 जो है वो बहुत कम हो जाएगा, T2 कम हो जाएगा तो बीटा जो है वो कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस कॉफिशिएंट कम हो जाएगा, तो फ्रिज काम करना लेस इफेक्टिव होगा। हम डीफ्रॉस्टिंग करते हैं, वो सारी एक्स्ट्रा जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है डीफ्रॉस्टिंग करने से। आजकल ऑटो फ्रॉस्ट होते हैं, पुराना घर में कोई रेफ्रिजरेटर हो उसमें लिखा होता है बटन डीफ्रॉस्टिंग। आजकल के फ्रिज टेक्निक्स में अपने आप प्रेशर चेंज करता है कंप्रेसर, अपने आप डीफ्रॉस्टिंग हो जाती है, एक्सेस ह्यूज आइस बन ही नहीं पाती, पहाड़ बन नहीं पाते, हिमालय पर्वत अंदर बढ़ नहीं पाता।
पर अगर पुराना रेफ्रिजरेटर हो जिसमें हिमालय पर्वत अंदर बना हुआ है फ्रीजर में, तो वहां पर बटन प्रेस करना पड़ता है कुछ दिनों में कम डीफ्रॉस्ट। उससे क्या होता है, सारे एक्स्ट्रा जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, पानी बन के नीचे ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा और फिर रेफ्रिजरेटर प्रॉपरली फंक्शन करेगा, क्योंकि T2 बहुत कम हो जाएगा तो बीटा जो है वो बहुत कम हो जाएगा। सो बच्चा पार्टी, आपने अपने फ्रीजर के ऊपर वर्कआउट करना है। फ्रीजर को ऑब्जर्व करो, फ्रीजर ऑब्जर्व करो, फ्रिज का कैबिन ऑब्जर्व करो। फ्रिज में चीजें, गर्मियों के दिनों में फ्रिज ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। आप बार बार डोर खोलते, बॉटल्स निकालते, आइस निकालते, कंप्रेसर काम करता है। सर्दियों के दिनों में हम इसका यूज नहीं करते इतना ज्यादा, इसलिए वो खराब होने के चांसेस कम होते हैं। कंप्रेसर जितना काम करेगा, गैस पाइप्स में से, कैपिलरी ट्यूब्स में से बार बार ब्लो करेगी तो फिर गैस के लीकेज के चांसेस भी हैं। कंप्रेसर गर्म होने से कुछ बार टर्मिनल पॉइंट्स उसके मेल्ट हो जाते हैं तो फिर वो फ्रिज खराब हो जाता है। हम कहते हैं गर्मियों में ही जरूरत पड़ती है पर उसी में ही खराब, क्योंकि ज्यादा यूजेज करते हैं हम, समझे। बार 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 फ्रिज को खोलना, जैसे ही आप खोलोगे थोड़ा टेम्परेचर, गर्म हवा रूम की अंदर जाएगी, फिर कंप्रेसर ने काम करना उसको ठंडा करने के लिए। फिर जब ठंडा हो जाएगा फिर वो साइक्लिकली अपनी इनिशियल स्टेज पे आएगा। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिक्टेट कर रहा हूं आपको पहले। व्हाई यूटेंसिल्स आर केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम? Why utensils are kept for long time in a kitchen before placing in the refrigerator? Before placing in the refrigerator. Number 2, there is no need to switch off the refrigerator even in winters. There is no need to switch off the refrigerator even in winters. Number 3, what will happen if the door of fridge is open? What will happen if the door of refrigerator is made open? Number 4, why freezer should be an independent cabin? Why freezer should be an independent cabin in the fridge? Why defrosting is done in the refrigerator? Why defrosting is done in the refrigerator? रेफ्रिजरेटर के न्यूमेरिकल करने वक्त याद रखना, जो टेम्परेचर बहुत कम है दैट वुड बी T2 और जो टेम्परेचर ज्यादा वैल्यू का है दैट वुड बी T1। समझे बात को? दिस इज ऑल अबाउट दिस रेफ्रिजरेटर। शॉर्ट सा टॉपिक है। अभी कुछ आपको न्यूमेरिकल वर्शन स्टेटमेंट शेयर करूंगा लेक्चर के बाद, जिसमें आपको कुछ जजमेंट हो जाए कि रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन किस एंगल से बनने, स्टेटमेंट में क्या पुट करना है। तो होपफुली ये छोटा सा लेक्चर रेफ्रिजरेटर का आपको क्लियर हुआ बच्चा पार्टी, राइट? सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल।